मोदी जी आपसे पूरे देश के लोग जो परेशान हो चुके हैं, मन की बात, धर्म की बात, राम की बात, मंदिर की बात, पाकिस्तान की बात, जात की बात, ये सब बंद कीजिए। आपकी मन की बात सोचकर, ज़रूरी नहीं है किसी को कि अगर हमने शादी नहीं की है या शादी परिवार नहीं है तो दूसरे परिवार की दर्द नहीं समझे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के अलावा कुछ और भी काम, देश में जो 70% जनता उनके बारे में सोचिए। आज लाखों किसान रास्ते में पड़े हैं, 1 महीना का लगभग होने जा रहा, ठंड से मर रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोचिए। बीजेपी को पार्टी चलाने के जो चंदा चाहिए, यही सब बड़ा कंपनी लोग बीजेपी को चंदा दे रहे हैं और वही पैसा लेके वो लोग हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हैं। The government is giving us bigger headache and pandemic like this. How do we run the house? Everybody knows that this is a time we have voted the government thinking that they will give us subsidies, but during the pandemic, no subsidy for the gas has come. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ Here we have Dr. Purnima Naidu. Ma'am, can you please tell me what is the agenda of today's protest? The protest is the LPG gas, they have increased 100 rupees. So we are protesting for that because during this COVID pandemic time, many people are suffering like anything, even maybe in health issues or financial issues or anything else. But they have increased the 100 rupees very, what will tell you, very bad time for us this year 2020. So please reduce the LPG gas. Not even LPG gas, they have increased the petrol, diesel, electricity bill, water bill. We don't know how the people are suffering here in Bangalore. So please reduce it. Thank you so much. Ma'am, we also have today Dr. Maya. Ma'am, how does this affect the women of the state, ma'am? Any decision by the government, any price hike directly affects the women because women have to manage the house. You know, whatever salary the man brings, we have to manage the houses, whatever may be the case. Today, during the pandemic, everybody knows people have lost jobs, salaries have been cut, money coming to the house is less. But in spite of that, the government every day is increasing diesel price, petrol price. Now gas is price. Everyday necessity thing, gas is increased. This is the second time in the month that is increased. What are we to do? Where we should go? How do we manage the house? ದಿನ gas price hike ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮನೆ ನಡೆಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. That is why we have come here to protest. All Aam Aadmi women, other women also have joined because it's a, more than pandemic. This is a bigger pandemic. The government is giving us bigger headache and pandemic like this. How do we run the house? Everybody knows that this is a time we have voted the government thinking that they will give us subsidies, but during the pandemic, no subsidy for the gas has come. Now instead of the pandemic, now maybe the government's bank has increased, so they are thinking daily necessity thing, they will increase the price and increase and money will come to them. But where is the price going? Where is our tax money used? Where is our GST money used? This is ridiculous, insensitive behavior of the government. We will protest until we get, our prices come down because we cannot stand this anymore. We wanted the government to understand the woman's life. Whatever the case be, she has to quietly run the house, but nothing. That is why nobody has to care for us. We have come out on the roads. We want Narendra Modi ji, Yediyurappa ji to listen to us and bring the gas price down. Otherwise, we'll keep protesting day, night. That is it. Madam, what do you have to say about today's protests and ongoing demands? The LPG has made the people to sit on the roads. जो सरकार यहाँ के कानून जो लेके आई, जो बिल पास कर रही है, वो उसको वापस लेना होगा। हम लोग मोदी जी को चेतावनी दे रहे हैं कि ये हमारा छोटा सा एक एजेंडा हम दिखा रहे हैं। अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो हम गली गली निकलेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, विधानसभा तक पहुँचने भी हम पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी आम आदमी को जीने दो, सुकून से जीने दो। ये गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। वहाँ पे आप गैस का मोल बढ़ा रहे हो, कभी गार्बेज का मोल बढ़ा रहे हो, कभी इलेक्ट्रिसिटी का मोल बढ़ा रहे हो। अगर आपके हाथ से ये सत्ता संभाली नहीं जा रही है तो इस सत्ता को छोड़कर उतर जाइए। मैं सभी लोगों को एक मैसेज देती हूँ कि अपने घरों से बाहर निकले, इस सत्ता को खाड़ फेंकने में हमारा साथ है। आम आदमी पार्टी जो गरीबों के हक के लिए खड़ा हुआ है उसको सपोर्ट करें ताकि हम इस देश में इस सुकून का एक कानून लाएंगे, हम गरीब आदमी को सुकून की जिंदगी देंगे। थैंक यू।
talking about women empowerment. We have always been telling that women should come into power. Because there is no enough women representation, the government is not understanding the women's issue of running a house. You know, if there is a woman in that representative of government, she would have fought for this, not to increase the gas price. That's why women should come in power, women should come in governance to understand the daily hassles a woman has to face to run a house, to manage everything, whether there is money or no money. So please, the government, this is time for you to understand and realize that you should not be hiking the price, at least during the pandemic. We have voted you to give us subsidies during this to run at our houses peacefully. Don't make us lose our mental tension, mental peace. So we request the government to consider this issue and bring the price down immediately, because gas is a necessity item. You cannot be increasing it every day in and out. We have Mr. Vijay Sharma, the State Vice President of Karnataka from Aam Aadmi Party. Sir, what is the point of today's protest, sir? Why has the Aam Aadmi Party called for today's protest? So, Namaskara. As you know, the central government has increased the gas cylinder price in last 1 month twice. पूरे देश के अंदर में मोदी जी आपसे पूरे देश के लोग जो परेशान हो चुके हैं, मन की बात, धर्म की बात, राम की बात, मंदिर की बात, पाकिस्तान की बात, जात की बात, ये सब बंद कीजिए। आज 8 महीना हुआ है कोरोना से जनता परेशान होकर आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। देश का 70% जो मध्यम क्लास आबादी और 25% जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, वैसे लोगों पर आपने एक बोझ और डाल दिया। आज की सुबह उठ के 50 रुपया और सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया। वो जो घर में चूल्हा जलता है, जिसके ऊपर गरीब के बच्चे पलते हैं, कभी आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए। आपके मन की बात सोचकर, ज़रूरी नहीं है किसी को कि अगर हमने शादी नहीं की है या शादी परिवार नहीं है तो दूसरे परिवार की दर्द नहीं समझे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप थोड़ा सहानुभूति पूर्वक सोचिए क्या कर रहे हैं आप अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के अलावा कुछ और भी काम, देश में जो 70% जनता उनके बारे में सोचिए। आज लाखों किसान रास्ते में पड़े हैं, 1 महीना का लगभग होने जा रहा, ठंड से मर रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोचिए। उनको पाकिस्तानी आतंकवादी खालिस्तानी क्या ये तमाशा मचा रखा आपने। एक नागरिक के नाते मुझे आपको प्रधानमंत्री कहते हुए गर्व होना चाहिए, जो मैं नहीं फील कर रहा हूँ। मैं नहीं फील कर रहा हूँ। आपके मंत्री पर आपका काबू नहीं है, जब मर्जी जो चाहे मर्जी कह के घूम रहे हैं। मुझे अच्छी तरह एक घटना याद है, देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। जब दिल्ली में इलेक्शन चल रहा था तो आपकी एक साध्वी जी पब्लिक की जनसभा में कह रही है कि इस बार मुकाबला रामजादों का हरामजादों का होगा। अगर जीते तो रामजादों की जीत, हारे तो हरामजादों की जीत। तो दिल्ली के अंदर आज जो इतनी बड़ी संख्या में 70 में 62 सीटें जीत कर आई, क्या मैं पूछना चाहता हूं कि आपके मंत्री, आपके दल और आपकी सरकार के हिसाब से वो लोग हरामजादे हैं? शर्म आती है मुझे ऐसी सरकार को देखकर, ऐसे मंत्रियों को देखकर, और उस पर आपकी खामोशी पर। आप गैस का जो रेट बढ़ाया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देश का ऑटो चालक, देश का श्रमिक, मजदूर, ये गरीब तबके के जो लोग हैं, उन पे दया कीजिए, रहम कीजिए। इस गैस के रेट को वापस कीजिए और आपकी तरफ से सहूलियत भरा क्या कदम आप उठा सकते हैं, उस पे सोचिए। दूसरी चीज़ मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि 6 साल से हमने देख लिया है देश में क्या चल रहा है। जात की राजनीति, धर्म की राजनीति, राम की, पुलवामा की, पाकिस्तान की, इमरान खान की, केसरी रंग की। अब समय आ गया है कि हम देश की जनता एक हो जाए और सरकार जो भी है मुद्दों की बात करे। सरकार पे नज़र रखिए, ध्यान रखिए कि आपको कहाँ भटकाया जा रहा है। कांग्रेस ने 45 साल मुसलमान और दलित की राजनीति की, आज वही एक फॉर्मूला बीजेपी कर रही है, हिंदू पोलराइजेशन की राजनीति कर रही है। समय आ गया है, आप लोग जाग जाइए। समय आ गया है 2024 के लिए इनको सत्ता से उठाने का। मैं तो कहता हूँ कि किसान जिस तरह आज रास्ते में बैठा है, पूरा देश का जो युवा लड़ रहा है बेरोजगारी से, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, कौन क्या खाएगा उसका हिसाब चल रहा है। तो ऐसी सब चीज़ों के खिलाफ में मेरे राम का नाम आप, धर्म का नाम आप, मंदिर का नाम आप राजनीति में यूज़ कर रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? आप मुद्दों की बात कीजिए। तो देश की जनता ऐसी एक व्यवस्था के खिलाफ उठ के खड़ी हो, जैसे भ्रष्ट कांग्रेस को हमने देश से मुक्ति दिलाई है, वैसे ही आज ये मन की बात, भाषणबाजी, धर्म की राजनीति और बिना मुद्दों की राजनीति करने वाले के खिलाफ एक होकर जनता एक हो और इनको सत्ता से बाहर करने का रास्ता ढूंढे। जय हिंद। Thank you very much, sir. Today we have Mr. Mohan Dasari, the President of Bangalore City of Aam Aadmi Party. Sir, ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಸರ್?
ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ LPG ಬೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 100 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇವರು ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಆ ಥರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಶಲಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆನ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಉಜ್ವಲ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನು ಇವತ್ತು ರೀಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸೌದೆಯಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹಿತ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸದಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ. Thank you very much, sir. We have Mr. Mohammed Asad, the Aam Aadmi Party Bangalore secretary. Sir, even though the government has given the subsidy, why do you still protest? गवर्नमेंट जो सब्सिडी दिया है, आप किसी भी इंडिविजुअल को पूछ के देखिए कि जो बैंक में सब्सिडी का पैसा आते थे वो पैसे कब तक बंद हुआ है और क्यों नहीं आ रहा है. ठीक है, एक तरफ तो आप 450 को सिलेंडर को 750 में बेच रहे हो और 150 रुपया अगर आप सब्सिडी दे रहे हो तभी वो एक तरह का झूठी है. ठीक है, क्यों ना मोदी गवर्नमेंट जो सप्लाइंग कंपनी है गैस का उनके ऊपर ऑडिट कराता है, क्योंकि जो सप्लायर कंपनी है, गैस सप्लाइंग कंपनी है, ये लोग हमेशा एक बात बोलते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है. जो पर क्यूबिक गैस सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट जो रेट दे रहे हैं उसके ऊपर उसको ऑडिट क्यों नहीं कराता मोदी सरकार. ऑडिट करा के देख ले कि कंपनी का नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है. आम आदमी पार्टी से मैं चैलेंज करता हूं कि जैसे कि दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बोल रहा था कि हम लोग लॉस में चल रहे हैं, ऑडिट करने के बाद देखा गया कि 3,000-4,000 करोड़ रुपया वो लोगों को सालाना इनकम रहता है, प्रॉफिट रहता है. इसी तरीके से गैस का भी कंपनी अगर बोल रहे हैं कि हम लोग लॉस में चल रहे हैं तो ये दरअसल झूठ है, सरासर झूठ है. और मैं मांग करता हूं कि मोदी जी पूरी हिंदुस्तान के जनता के सामने ऑडिट रखे और सुप्रीम कोर्ट का एक्स जज को कमेटी बना के ऑडिट कराए गैस कंपनी का. ये भी सामने आ जाएगा कि गैस कंपनी का कोई नुकसान नहीं है. एक्चुअली गैस सप्लाइंग कंपनी को जो रेट भी गवर्नमेंट डॉलर में पे कर रहे हैं वो भी पर क्यूबिक में $2 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को चाहिए पार्टी चलाने के लिए चंदा चाहिए. बीजेपी को पार्टी चलाने के लिए जो चंदा चाहिए यही सब बड़ा कंपनी लोग बीजेपी को चंदा दे रहे हैं और वही पैसा लेके वो लोग हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हैं.